Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Dr. Altaf, for very kind introduction, and I'm very pleased that I'm having the company of after so many years Dr. Javed Sufi, and he was our colleague and a very renowned personality, both in medicine, field of medicine, and the showbiz as well. So, what the topic of today is that we are discussing the management of diabetes. So many things are coming to your mind that what is the actual management. The last time we discussed the pre-diabetes, how you prevent the diabetes, and what is the pre-diabetes actually, because this is the area which need more to be more focused. So this is when we talk about the diabetes itself, it's not actually the management of hyperglycemia, and it is not the glucose-centric approach. Basically, you have to manage the other risk factor as well. So in this meeting, we are basically discuss with the management of hyperglycemia, how you manage hyperglycemia. The next meeting would be focused more on the other risk factors management, like we are just discussing the management of the dyslipidemia, and as well as the other how you screen out the other complications and how you manage those complications. So that will be going to cover the whole scenario. So this is so these are the few questions which you just read it out and you have to answer at the end of the meeting. That the first question is that metformin should begin if the A1C remains elevated after 3 to 6 months of diet treatment. So this is question 1. I'm not answering now. So at the end of the meeting, this is the pre-test question. And if an A1C of 7% is consistent with the daily average glucose of around 120 milligram per deciliter. Third, the SGLT2 inhibitors may elevate blood pressure, necessitating more frequent monitoring. And amylin hormone is released by the beta cell of pancreas. And the last but not the least, the efficacy of insulin analog is superior to the human insulin. So these are few myths, these are few questions which I placed in front of you, and you have to answer at the end of the meeting. I hope that at the end of the meeting, you will be able to answer these questions very correctly. So what are our objectives? What are our objectives today's meetings? So this is what we see, that we will discuss the highlights, the current American Diabetes Association, which what they say about the glycemic control. And we highlight the current ADA glucose treatment algorithm, which is recently published, and review and update of diabetes therapeutic classes. What the therapeutic classes which we are having and how you use it, and identify the patient with diabetes mellitus appropriate for the insulin therapy. Although the insulin therapy is a very long subject, and I'm not able to cover it properly in this meeting, because I will just touch the topic. Might be in the near future we are going to discuss in the detail, because it's a kind of the workshop where you can say that how you learn how to give the insulin, how to select the patient who are the candidate for the insulin therapy, and how you manage these patients later on. So because this is the very common this is my favorite sentence which I just mentioned, that diabetes mellitus is a progressive disease. ये एक तरक्की पसंद बीमारी है, ठीक है ना? This is what is, when you translate it in the words, this is a progressive disease. So this is actually in real words a progressive. It gets older. When you get older, your diabetes gets older. It will not be the same disease which you are having today. So it will be entirely the different disease after some time. So what we see, this slide you might have seen so many times, because what happens, the question is same, anda pehle murgi pehle, this question is same. First of all, what we see is that there is insulin resistance. The human being has some tendency for the insulin resistance, and it varies from person to person. So what is the result of the insulin resistance? If someone is having the insulin resistance, so what will be the response of the body to this insulin resistance? Kya hoga? Yes, the beta cell, you will put more load. Sorry. So this is the blue line shows, because initially, just like your car or jeep is stuck in the desert, or कीचड़ में गाड़ी फंस गई, you keep on pressing the accelerator and you try to overcome the resistance which your tires are facing. So initially your beta cell, they
try level hard to overcome this resistance. Okay, sorry. So overcome this resistance. So ultimately, a day may come in the life. So very interestingly, you see this process starts around down the road 10 years before the overt diabetes, because you are having diabetes over the period at the time 0 time. So this is the 10 years before the onset of the diabetes you might be having. Just last time we discussed the pre-diabetes. So this is the insulin is there, and initially you have the hypertrophy of the beta cell, and ultimately this beta cell functional capacity, it is not the beta cell mass which is, so it is a functional capacity of the beta cell which is decreased when the 50% of the capacity is gone. So that is the day when you have the overt diabetes. So this is the, and one more important thing, very, very important thing, which we usually neglect. So this is the last, the panel where you see the macrovascular complication. This is touching over here. Even you are not having overt diabetes, but the foundation of the macrovascular complication has been laid down well before the time, even 5 to 10 years before the time. So that's why we are recommending the treatment with the metformin lifestyle modification on the day 1. बहुत सारे लोग पूछते जी आप पहले दिन से मैं गोली खानी शुरू कर दूँ, क्यों नहीं खाएंगे? You have to take, because you're already having suffering some kind of complication, macrovascular complication. So this is what we see, and initially the post meal glucose is disturbed, and later on the fasting is disturbed again. So this is a time when you have overt diabetes, because under the influence of this post meal hyperglycemia you have more microvascular complication. And this is basically the summary of the trial. What we have learned. Initially people were thinking कि जी sugar control कर ली, glucose-centric approach है, then everything would be okay. You don't need any further treatment. So this was a basically myth. To prove this myth correct, what they have UKPDS trial and the DCCT trial. कौन देखा? दोनों में देखा कि क्या सबक सीखा कि शुगर कंट्रोल करने से क्या फायदा हो सकता है. So what they saw, very interestingly, what they saw in the UKPDS trial, the microvascular complication, they were less. But as for the macrovascular complication, they were not benefited more, much more. So what is the reason behind? But later on, and mortality was, later on they said that because if you get the glycemic control, good glycemic control, your mortality may be decreased down the road when you see after 23 years. Because UKPDS को 23 साल बाद दोबारा जब देखा गया, उन्होंने कहा उसमें एक लेसन है, वो मैं आपसे अभी थोड़ा डिस्कस करूँगा, आपसे पूछूंगा भी. So the same lesson they have learned from the DCCT trial, which was on the type 1, this was on the type 2. The microvascular complication, they were benefited most. Later on down the road, they came to know the macrovascular complication, they were also benefited, and mortality plus minus. But the third thing which I am talking about is the ACCORD trial. This was the game changer trial. This was really changed the whole scenario of the diabetes management. What they have come to know, if you try to control the blood sugar very effectively, very tightly, you have increase in mortality. This is very great paradox which you see, that if you control the blood sugar level very effectively, so mortality is increased. But later on, when this trial was dissected, the population they selected during this trial, that's our elderly population, they above 65 of age, and they were having other comorbid condition. And in those patients, they tried to bring down the blood sugar level below 6.5% A1C. तो क्या हुआ? हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, रिदमिया होने शुरू हो गया, उनको हार्ट अटैक होने शुरू हो गया. तो दिस ट्रायल वाज स्टॉप प्रीमेच्योरली. इसका जो कंपोनेंट प्रीमेच्योरली स्टॉप कर दिया गया कि इससे मोर्टेलिटी इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द मेडिकल एथिक्स. So now the people are thinking, what happened? So do we need a glucose-centric approach? And can we put everyone in the same basket? जिन पंजाबी कहते हैं सारे इको किले सारे बांध सकते हैं नहीं. Because this is not possible. Because you have to individualize the treatment. Every patient is different. You cannot apply the same rule on the person who is having 26 years of age and having diabetes, new onset diabetes, and the person who is 75 years of age and having so many comorbid conditions. In that case, obviously, you are not going to be very tight in those.
in that case. So the same kind of thing which you have the advanced and mediated trial. I'm not going to details due to. And what is the anti-hyperglycemic therapy? So what is what are our goals and how we design it? So anti-hyperglycemic therapy. What are our glycemic targets? किसी को पता है? What should be our glycemic targets? It depends on the age. If the age is higher, then you can even go up to HbA1c 8 even 7, and then we have got less than 7 as per EDA. So I deliberately because put this question in front of you because I just discussed because you have to individualize the treatment. So this is just like the golf ball. You just hit the ball and you don't know where it is going to land. So obviously you have to be. अच्छा एक और जो चीज़ आपने सबसे पहले सीखी जो हमें यूकेपीडीएस ट्रायल से मिली वो क्या चीज़ थी जो बड़ी ज़रूरी है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट if you because UKPDS trial was conducted in those patients who were newly diagnosed patients and they have intensively treated arm and conventionally treated arm. तो जिन लोगों को शुरू में टाइट कंट्रोल कर दिया गया उनके A1C बड़ा अच्छा रखा तो उनके अंदर जब ट्रीटमेंट लूज भी कर दिया आफ्टर 23 years they were still having the same benefits. So that shows the importance of early glycemic control in the newly diagnosed patient. वो newly diagnosed थे और उसमें HbA1c 7 पॉइंट कुछ था हमारे पेशेंट तो 10, 12, 15 के साथ. तो अब ये जो है कि इससे ये साबित इसको हम कहते हैं लेगेसी इफेक्ट यानी विरासती इफेक्ट है यानी ये आपने शुगर कंट्रोल की कभी ज़िंदगी के हालात के थपेड़े खाते हुए वो शुगर कंट्रोल नहीं रही और बुरे कंट्रोल में चली गई स्टिल यू आर नॉट हैविंग कॉम्प्लिकेशन बिकॉज योर बॉडी लर्न दैट now this person is not going to have much complication initially because he has control and this is the reward which he got कि शुरू में अच्छा कंट्रोल किया तो उसका क्या रिवॉर्ड मिला so this is the lesson which we have learned in the UKPDS trial. So this is our target in most of the patient. This is American. The less our A1C should be less than A1C 7% which shows the mean plasma glucose around 150. This is quite reasonable and keeping in mind the ground reality. And the preprandial glucose should be less than 80, between 80 to 130 milligram, and postprandial less than 180. And avoid 30 कुछ ज़्यादा नहीं है. ये ground reality की बात आपके तो हमारे जो पेशेंट है वो तो आपको पता है कहाँ पे आते हैं. And this is most important, avoidance of hypoglycemia. But I will add one thing more, avoidance of weight gain. Weight gain को भी हम ऐड करते हैं. And this is the key message, individualization is the key. More stringent criteria 6 to 6.5 किन लोगों में करना है where you have short disease duration, healthier patient, young patient है and they are not having cardiovascular disease. But less stringent even आप 7.5 to 8 मेरे पास उस दिन 80 साल की अम्मा ये वो कहती मेरी 82 years की तो मेरे A1C 82 है 8.2 है मैं कहने ठीक है कहते किस तरह मैं क्या जिन्ने साल उम्र उन्हें कुछ पॉइंट ला के उन्हें सारा बात सही है. So this is for the elderly patient very simple formula that if you are 75 you can go okay with the 7.5 because what you are getting what you are going to get if you are controlling very hard in a person who is 75 years of age obviously you will put the patient into the risk of hypoglycemia. And postprandial जो है वो जो है equal to 140 or less than 140 that is not this is for American diabetes. वो जब हम लेस स्ट्रिंजेंट देखें ना जब ये करोगे तो A1C 7 आएगा जब ये करोगे ना 140 पे लेकर फिर आपके A1C ये आएगा 6.5 आएगा. हाँ जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो है 70 to 110 भी ये अभी हम नॉर्मल की बात ये हम उन लोग हैं ये कंट्रोल क्राइटेरिया दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सो दिस इज समथिंग एल्स. लेस स्ट्रिंजेंट when you having comorbidities complication repeated hypoglycemia short life expectancy बंदा 80 साल का हो गया तुसी की करना चाह रहे हो ठीक है just you have to make his life more comfortable and you have limited resources you are not having enough resources and support and motivation that all these factors which determines how you design your anti-hyperglycemic therapy. So this is a very interesting. आपके कितने परसेंट पेशेंट का A1C 7 से नीचे होता है? कम ही होता है. अगर तो रेगुलरली फॉलो अप करें तो काफी परसेंटेज बताया ना मुझे
20 to 30%. Sure. और 2/3 वेरी गुड. और 2/3 पेशेंट सूफी साहब के they are having A1C below 7%. Excellent performance. What? Anyone? अच्छा देखिए वही हमने बताया ना कि जो पेशेंट को फॉलो अप रखते हैं उनका तो 70-80% कंट्रोल होता है. जो आते ही नहीं है तो वो ज़ाहिर है. But the data which we have, this data which was present on the CDC National Diabetes file, वो ये शो करता है the year 1999 to 2002 only 43% people were having the A1C below 7%, and later on the year 2003 to 2006, in these 3 years it's around 57% of patients they were having the A1C below 7%. This is a figure from the US, not from this part of the world. So but diabetes is not a simple disease. इसके पीछे अब उन्होंने एक डी फ्रांजो, एक साइंटिस्ट है टेक्सास यूनिवर्सिटी से, उसने इसको नाम दिया ऑमनस ऑक्टेट, बड़ा मनूस 8 का जो क्या था वो है, एक फिल्म थी इंडिया की जिसमें 11 होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं. अच्छा, ऑमनस ऑक्टेट. सो दिस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी दैट. पहले हम ये क्या सोचते थे कि शुगर होती क्यों है. What was our idea? पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा, बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहा. सिंपल है ना, ये है ना. लेकिन ये कहते हैं इम्पेयर्ड इंसुलिन सेक्रीशन, बीटा सेल आपके काम नहीं कर रहे, लो जी इंसुलिन शुगर हो गई. ये था ना. दिस वाज ओनली, वी आर जस्ट ब्लेमिंग वन एंटिटी. सो दिस वाज नॉट द इशू. 8 जिम्मेदार हैं इसके. कुछ अभी लेटेस्ट 11 आ गए हुए हैं, तो जो recent I am not going to details. So secondly is the increased glucagon secretion. कि आपके अल्फा सेल हाइपरट्रॉफिड होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन क्या करता है, शुगर बढ़ाता है, हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को इंक्रीज करता है, इट नलिफाई द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन. थर्ड, इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, ये प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रीब्यूट करती है. कुछ न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन है विच इज नॉट द टॉपिक टुडे, and decreased glucose uptake. Muscles are not taking up the glucose, they are not utilizing glucose properly, and this is the basis of SGLT2, because your kidneys are reabsorbing more glucose. Type-2 diabetes में ज़्यादा glucose वापस खींच रहे हैं, दोबारा reabsorb कर रहे हैं. That's why you need to control this problem. Increased lipolysis, obviously contributing more to and it providing substrate for more glucose production. And decrease incretin फैक्ट. इंक्रेटिन क्या है कि वो हार्मोन जो इंटेस्टाइन से सिक्रीट होते हैं, जो आपको पता है, उनके नाम भी पता है, ठीक है ना. इंक्रेटिन हार्मोन हैं, वो आपके वो शुगर को बढ़ाते हैं. उनमें किडनी डायूरेसिस ज़्यादा नहीं होगी जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जब उसमें ग्लूकोज भी फिल्टर होगा, साथ में दूसरे सोडियम भी है, तो लेकिन हाँ ये वो इनिशियल स्टेज जो देखिए इसमें ये है कि इनिशियल स्टेज में हाउ देखें, हमें पहले पैथोजेनेसिस हम डिस्कस करें, होती क्या है, जब होती है वो क्लिनिकल फीचर्स में, कि फिर बाद में ग्लाइकोसूरिया वो हो जाता है. एंड में क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना. So these are the class anti-hyperglycemic therapy, oral agents and non-insulin injectables. So this is a new class which we have. Vagonites, you all know, sulfonylurea, TZDs, meglutides, alpha-glucosidase inhibitor, DPP4 inhibitor. This is a new class, SGLT2 inhibitors, dopamine 2 agonist, and bile acid sequestrant, and GLP-1 receptor agonist, amylomimetics. So these are the different classes, how you manage your diabetes with these effects. So, odd thoughts. So this is the slide which I deliberately put. What are the odd thoughts? ठीक है, what the patient has in his mind. शुगर किमें कंट्रोल करनी चाहिए. आप बताएं कैसे कंट्रोल करनी चाहिए. आप क्या आपके मरीज क्या टोट के बताते हैं आपको. What are the odd thoughts? पहले खा लो, नीम और मेथी दाना खा लो, और these are so many different also. हैं? डॉक्टर टीवी पे आते हैं, वो भी इलाज करते हैं, वो लबलबे ठीक कर देते हैं, है ना, ठीक है ना. तो
So this is a very odd thoughts which where we have to wait. But Sufi knows very well how to come how many patients he is coming across with these kind of thoughts. The different odd thoughts. हैं फिक्की चीनी खाने ने किसी ने दम करके दे शुगर नहीं चेक करनी तुसी चीज मेरा इलाज करना लेकिन शुगर नहीं चेक करनी शुगर चेक करनी तो टोटका टूट जाना जी ठीक है अच्छा ब्राउन शुगर के बारे में एक पेशेंट आया वो कहता सर फलां जगह पे एक बाबा जी है वो नीम के पत्तों से ना हाथों पे दम करते हैं तो शुगर खत्म हो जाती है लेकिन आपने शुगर चेक नहीं करनी ठीक है ना सो दीज आर डिफरेंट ऑड थॉट्स बट वी आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड वी हैव a very interesting kind of a thought, you know, that what the people thought. वो कहते जी आप विस्की पियोगे ना good whiskey, diabetes may be driven from the system by good whiskey, says scientist. ये अखबार में खबर आई हुई है उस जमाने में ठीक है ना You can take away 2 or 3 ounces a day in severe cases will eliminate it. चलो जी छुट्टी मौजिंग ठीक है ना यही रोल इंटरनेट का है आजकल कितना कुछ है इंटरनेट anybody can be misled so this is the odd thought from the west ठीक है ना so they were not talking or thinking sense you know so what happened basically I know मैं सोचा ये होता क्या you know that जब आप अल्कोहल लेते हो initially तो you have a hypoglycemia initially ठीक है initially hypoglycemia that's why you recommend that you must take carbohydrate with it when you are taking alcohol so that's why because you might have the hypoglycemia so that's protein के साथ so this was the odd thought from the west which I just got so this is because it just for the sake of interest so what is the capacity of every agent which you have just named वो A1C कितना नीचे ला सकती है मेटफॉर्मिन 1.5 to 2 सल्फोनाइलयूरिया 1.5 to 2 GLP-1 1 to 1.5 TZD 1 to 1.5 SGLT 2.5 to 1.5 DPP-4 0.5 to 1.5 अल्फा ग्लूकोसाइड 0.5 to अच्छा बहुत से देखें ना अब आपका 11 पे आपका पेशेंट आ रहा है और आप उसको एक गोली दे रहे हैं कि उसको तुम्हारी 7 भी ले आऊँगा मैं ठीक है ना तो आप उसे you can assess exactly how much treatment how intensified treatment kind of treatment you need to bring down the A1C to the desired level so this is basically the efficacy of non-insulin anti-diabetic agents insulin has a tremendous and robust power of decreasing the A1C bringing down the A1C to the normal level and a very interesting figure which I'm just presenting here is that जो जिन लोगों को ये ऊपर वाला कर्व है पिल्स ओनली ये गोलियां ले रहे थे ना तो 40% जो लोग जो गोलियां ले रहे थे ना ये 50% ये गोलियां लेते रहे 11 साल तक यानी गोलियों के से इतनी मोहब्बत है कि 11 साल तक वो गोलियां ही लेते रहे 50% लोग और जिनको दी गई थी इंसुलिन ओनली उन्होंने पहले इंसुलिन उन्होंने कहा छो जी रहने दे कि ये रोज टीका लाओ ऐसे ये यहाँ पे देख रहे दे ड्रॉप फ्रॉम 25 to around below even 15 around 15 to 16 18% and both insulin and pill they have the same kind of curve so the acceptance for the tablet is much high in the society the reason is because it's non-invasive non-painful easy to take whatever गोली नहीं हो जाता इंसुलिन दी कोई यही सवाल होता था so this is what we जहाँ बोर होने लगा मैं बता देना मैं टीका लगेगा उसके बाद लास्ट में मेडिसिन हाँ because there's so many well talk about the insulin मैं थोड़ा सा टच करूँगा आपको इंसुलिन के बारे में बताएंगे simplified form में so biguanide basically is a metformin basically the metformin initially fenformin was there but and very interestingly metformin was not approved by the FDA till the results of UK PDS trial were there ये तो कोई अर्ली 90s में उन्होंने अप्रूव किया हालांकि ये जो दवाई है उन्होंने कहा जी ये लैक्टिक एसिडोसिस करती है उनके जहन में ये दिमाग फंसा हुआ था ये लैक्टिक एसिडोसिस करती है तो उन्होंने FDA ने मेटफॉर्मिन को नहीं किया था आप मुझे बताएं आपका कोई पेशेंट इंटॉलरेंट हो जाए मेटफॉर्मिन से वो ले नहीं सके जे अपसेट हो जाए फंस नहीं जाते मैं तो फंस जाता हूँ रियली माई पेशेंट्स आर गॉन और मैं तो भी फंस गया मैं भी फंस गया
तो this is this is a basically foundation. कोई भी आपकी गाइडलाइन, ये चूंकि बेसिकली जर्मन दवाई थी, वो बायस था उनका, हाँ। जिसकी वजह से ये लेट उन्होंने accept बहुत एक्सेप्ट की फैन फॉर्म तो खैर आउट ऑफ द मार्केट है वो तो मर्क वालों की थी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना बिगोनाइट्स के बारे में, because every guideline start with this statement lifestyle modification metformin, एक ही सांस में ये फिक्रा बोल देते हैं, and this is true because you have to start your treatment with metformin. If या आपके ट्रीटमेंट में metformin लाजमन होनी चाहिए if the patient is tolerant to it, can tolerate, and it leads to modest weight loss and low cost, सस्ती, रुपए के 2 रुपए की गोली कितनी की है, 2-3 रुपए की। and GI side effect quite common हमारी सोसाइटी में, because we are gut conscious people, पेट फौरन अपसेट हो जाता है, लो जी उल्टियाँ आ गई हैं, दिमाग दिल भरया रहता है, ये व्हाट वी आर नॉट थिंकिंग, व्हाट वी आर ईटिंग एक्चुअली। हमने जो मैं कहता हूँ कि जो हमारे जो खाने हैं दे आर फ्राइड, हांडिया जो भून रहे होते हैं वो किससे, ऑयल में भून रहे होते हैं ना, वी आर ईटिंग द फ्राइड मीट, फ्राइड वेजिटेबल्स एंड दाल बाची को तड़का ला, ठीक है ना। So this is because I think they also contribute to this GI side effect. But what is the solution then? करना क्या चाहिए? एक तो काम करें तो कई पेशेंट सेटल हो जाते हैं। एक सिंपल असूल है मेडिसिन में, गो लो गो स्लो, गो लो गो स्लो। थोड़े से शुरू करो, छोटी 250 वाली से शुरू कर लो, ओडी से शुरू कर लो, फिर बीडी पे ले जाओ। और व्हाट आई सजेस्ट टू माय पेशेंट कि इसको मिडिल ऑफ द मील के अंदर ले, उससे भी कुछ फर्क आपको पड़ता है। सो you did titration with the meat, and we are now having an extended release preparation because we have slow release preparation. आजकल ग्लूकोफेज XR भी मौजूद है मार्केट में, so that can be. And the only problem which is again theoretical, I haven't seen much, but they still claim that vitamin B12 deficiency is with. This is the only problem जो मैंने अभी तक इसको देखा है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब कभी भी हमने टेस्ट कराया बहुत कम पेशेंट है जिसका लेवल लो। That is why, because more theoretical, more not so much practical, and it's cardio protective. अगर इसका देखें, अब ये दवाई सस्ती है ना, इतना ट्रायल भी कोई नहीं होना, मल्टीनेशनल कंपनी कोई ट्रायल नहीं करेगी इस पे कि इसको भी देखें ग्लूकोफेज कितने % रिस्क रिडक्शन करती है। 4 साल पहले शायद आपने वो पढ़ा हो, एक स्टडी आई थी, इट इज एंटी एजिंग, उन्होंने FDA ने ट्रायल के लिए परमिशन दे दी थी ट्रायल के लिए एज एन एंटी एजिंग। इसे वंडर ड्रग है एक्चुअली। सो lactic acidosis I have seen in my clinical practice. I have practiced more than 20 years. I haven't seen a person with lactic acidosis. मैं देखे ही नहीं है। एल्डरली में मेरा ख्याल है शायद। ठीक है, दिस इज द, देखिए इसका अब ये रीनल CKD में आपने कैसे देना, ये बड़ा क्वेश्चन लोग पूछते हैं। बट एवरीवन यू शुड हैव द ऐप ऑफ EGFR कैलकुलेशन। आई हैव दिस ऐप इन माय डेस्कटॉप, everyone is coming to me, I just calculate what is the EGFR, very simple formula, you just put the creatinine age and the sex साथ दिया होता है। नाउ तो आपके ये इस पे आप अपने डाउनलोड कर लें, फॉरन कैलकुलेटर लगा हुआ है EGFR कैलकुलेटर। If your EGFR is less than 30, you should not give it. But it's quite safe, 30 to 45, but you reduce the dose. अगर 1 ग्राम है तो 500 मिलीग्राम आप दे दो। And at least you get the EGFR annually. जरूर अपना करें पेशेंट का। If falls below the, अच्छा discontinue EGFR falls below the 30, अगर 30 से नीचे चला गया हुआ GFR तो आप ये नहीं देना, इसको मेटफॉर्मिन को नहीं देना। सेकेंड प्रॉब्लम विच वी यूजुअली फेस कि जब आपके पेशेंट वो जाते हैं एंजियोग्राफी कराने के लिए, वो आपको कंट्रास्ट मीडिया देते हैं, डिसकंटिन्यू एट द टाइम ऑफ एंड बिफोर एन आइसोलेटेड कंट्रास्ट इमेजिंग प्रोसीजर इफ द GFR इज बिटवीन 30 to 60। ये कितनी देर पहले, अब 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप कर लो, देखो वो क्रेटिन करवाते हैं आपका, अगर आपको CT स्कैन होना हो जो कुछ नहीं दे, लेकिन एक नॉन आयनिक कंट्रास्ट होता है, वो दैट कैन बी गिवन सेफली। ये तो आयनिक की हम बात करें, नॉन आयनिक उन दो पेशेंट जिसमें आपको देना जरूरी है, उसमें आप इसको हमेशा यू गेट द EGFR कैलकुलेटेड बिफोर दी आप जब आप कंट्रास्ट मीडिया पर स्टडीज करेंगे। सल्फोनाइल यूरिया, everyone's favorite medicine, particularly the general practitioner, they love to have it, है ना? कौन कौन लिखता है सल्फोनाइल यूरिया?
सारे लिखते हैं। सारे लिखते हैं। पता क्या है जी, मेटफॉर्मिन के बाद पुअर मैन मेडिसिन जो है वो बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक्स, इट मैटर्स, हमें इकोनॉमिक्स देखना पड़ता ठीक है ना। So, इससे पहली जनरेशन में थी आपके क्लोप्रोपामाइड था विच इज वेरी वेरी लॉन्ग एक्टिंग। सेकंड जनरेशन में ग्लाइब्राइड जिसको डायनिल कहते हैं, ग्लिपिजाइड दिस डायमेक्रॉन, दिस ग्लिमिपाइड दिस विच कॉल एमरल और गेटर व्हाटएवर, एंड दी व्हाट दे हैव कैन टारगेट फास्टिंग, हाइपरग्लाइसेमिया पोस्ट प्रेंडियल। देखो दोनों चीजें कंट्रोल कर रहा है और क्विक रिजल्ट है, हकीमों वाला काम। एक पूरी दित्ती नाल ही मरीज ठीक हो गया। है। वो पीस के ये इसको उसमें डालते हैं। enhances the insulin secretion, but the problem is it is not glucose dependent insulin secretion, because they enhance the insulin secretion continuously, दिन को भी रात को भी, लेकिन ये ब्लॉक नहीं करते आपको, इसलिए दैट यू हैव मोर चांस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, बिकॉज वो इतनी स्ट्रांगली बाइंड करते हैं उस रिसेप्टर के साथ। सो व्हाट यू हैव इट, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस सिक्रीशन यू हैव सेकेंडरी फेलियर। आपके अल्टीमेटली बीटा सेल जवाब दे जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट इंसुलिन एंड यू हैव मोर हाइपोग्लाइसीमिया। इन एल्डरली यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। इन इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, क्रेटिन हाई है, ईजीएफआर हाई है, तो आपको बड़े एहतियात से सल्फोनाइल यूरिया देने हैं, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है। ईजीएफआर कितना हो तो नाम दे। देखिए अव्वल तो मैं वट एवर इफ द पर्सन इज हैविंग क्रेटिन अबव 2, मैं तो बहुत मोहतात हो जाता हूँ, खासतौर पर रात को तो देता नहीं। तो व्हाट आई डू, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। तो एन इरेगुलर मील स्केड्यूल, सुबह का रोटी खाइए, शाम को जाकर जिसने खानी है उसको आप दोगे, सल्फोनेल दोपहर को गिरा होगा, ठीक है। यू हैव मोर वेट गेन, बट द गुड थिंग इज दैट इज लो कॉस्ट, एंड इन सम स्टडीज इट हैज शोन इट हैज रिमूव्ड मोर मोर्टेलिटी। बट जो हमारा ट्रायल था, एडवांस ट्रायल था, जो डायमेक्रॉन एमआर के ऊपर हुआ था, उसमें न्यूट्रलिटी शो की है, कार्डियोवैस्कुलर न्यूट्रलिटी है कि ये नुकसान नहीं करता। यू कैन हैव द बेनिफिट्स ऑफ दिस। टीजीडीज, बदनाम ज़माना, टीजीडीज है ना, बदनाम ज़माना हुआ है ना, अभी भी लोग यूज कर रहे हैं। मैं यूज करता हूँ, कहीं तो यूज करता हूँ, बिकॉज करनी पड़ती है। बिकॉज आई व्हेन द रोज़िग्लिटाज़ोन वाज इन दिस मार्केट, it was a wonderful drug, but I was attending a meeting in probably Germany, ESD, European Society of Study Diabetes. They were very much against. They were saying it increases the atherogenic dyslipidemia. LDL होता है ना, मुख्तलिफ किस्म, जो हम dyslipidemia डिस्कस करें, एक एथेरोजेनिक होता है, स्मॉल डेंस जो लाइक प्रोटीन होते हैं, तो कहते हैं इट इंक्रीजेस। तो इस पर फिर बहुत सारी इसका जब मेटा एनालिसिस हुआ तो उसके कहा जी ये तो आपकी जो थी रोज़िग्लिटाज़ोन, वो तो बेचारी फार हो, लेकिन इतनी वंडरफुल ड्रग थी कि इसके साथ जो कंट्रोल होता था ना, वो जाता कहीं नहीं था उसकी। ये एक्चुअली दे हैव रीइंट्रोड्यूस्ड इट विद प्रिकॉशन, पर लेकिन ब्लैक बॉक्स वार्निंग लगी हुई है इसके साथ, ऑब्वियसली वी आर नॉट रिकमेंडिंग इट। सो इट्स डायरेक्टली रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने वाली कौन सी दवाई है? देखो लिवर पे तो आपकी मेटफॉर्मिन है, लेकिन आपके पेरिफेरल टिश्यू पे कौन सी दवाई एक्ट कर रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस को? यही दवाई है जो मसल्स पे एक्ट कर रही है, आपकी फैटी टिश्यू पे एक्ट कर रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने वाली एक ही दवाई है, और तो कोई दवाई नहीं है। हमारे हाथों तो कट गए इस दवाई के बंद होने से। द गुड थिंग इज दैट इट हैज नो हाइपोग्लाइसेमिया, नो रीनल, बिकॉज यू कैन सेफली गिव टू द किडनी पेशेंट। एंड इन इंटरनेट मार्कर सीवीडी आप जो है उसको करें बीटा सेल प्रिजर्वेशन। कुछ लोगों में जिनमें आप रोकना चाहते हैं बीटा सेल प्रिजर्व रहते हैं, उसके बीटा सेल एपोप्टोसिस नहीं होता, वो डिके नहीं होता उनका। बट टीजीडीज दे आर द वंडर ड्रग, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव वेट गेन, एडीमा, एनीमिया। एनीमिया डाइल्यूशनल एनीमिया होता है, क्योंकि आपका एडीमा ज़्यादा होता है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आपकी हीमोग्लोबिन डाइल्यूट हो जाती है, तो आपको एनीमिया होता है। यू हैव मोर टेंडेंसी फॉर बोन फ्रैक्चर बिकॉज इट एनहेंसेस द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, and it was somewhat related with the bladder cancer. कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट वो कहते हैं जी, कुछ लोगों में कहते हैं कि स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है, जो ट्रायल कुछ हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आई यूजुअली गिव वेरी स्मॉल डोज। बट अब मैंने उसका तरीका ये निकाला, मैं बाद में बात करेंगे। SGLT2 के साथ मैं कंबाइन करता हूँ मेटफॉर्मिन के साथ, बिकॉज द वेट गेन में और जो आपका डीमा वाला एलिमेंट वो न्यूट्रलाइज हो जाता है काफ़ी। दिस इज माई अवेलेबल ही वही है, वही है। मैग्नेटाइड्स ये आपने यूज़ किए होंगे,
ये किसी ने ये नोवो की एक आती थी, नोवो नॉर्म अभी अवेलेबल नोवो नोवो नॉर्म। नॉर्म। द ब्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन इज दैट इट इज वेरी शॉर्ट एक्टिंग। बुढ़ा बंदा जिन्होंने हाइपो हो रहा है बार बार, you need a drug which causes insulin stimulus. This is not sulfonylurea. This is not sulfonylurea. Remember, it acts on the different receptors, but it causes insulin secretion. ठीक है? Stimulates insulin secretion. Short acting. बूढ़ा बंदा है जिसको आप, और एक और पेशेंट जिनमें मैं अगर यूज करता हूँ वो लोग हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया बार बार होता है। गो विद द लो डोज, ये क्वाइट किडनी सेफ, दे आर नॉट स्टिमुलेटेड थ्रू द किडनी। ठीक है, तो ये भी आप सेफली दे सकते हैं जब आप ट्रीटमेंट को इंटेंसिफाई करना है। नोवो नाम के नाम से ये, इट इज 0.5, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम तक है। एंड TDS 1 मील 1 टैबलेट, अगर आप खाना मिस करते जो लोग वो ना लें। शॉर्ट एक्टिंग। एंड इट इज़ वेरी गुड ड्यूरिंग रमज़ान पीरियड। अगर आप चेक करना रमज़ान में सहरी पे देते हैं आप, तो आपका जो पोस्ट सहरी जो पराठा खाया होता है वो कवर हो जाता है इससे। Alpha glucosidase inhibitors, yeah, you know, acarbose, very notorious because of their certain GI side effects. Yes, Obviously, बंदे को पहले ही गैस। बस अच्छा इसमें है, but this is very good for postprandial hyperglycemia. And this drug was used in diabetes prevention trial में भी हुई है। इसको diabetes prevention में भी यूज किया गया है। And delay the gastric entry into the circulation and flatulence, diarrhea and nausea, vomiting, ये आपके साइड इफेक्ट है। No हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, मुझे बताएं, अगर किसी बंदा जो एक्आरबोस ले रहा है, यानी ग्लूकोभेज जिसको कहते हैं, वो ले रहा है और उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, आप क्या दोगे? चीनी या कुछ और? मीठा दोगे, फल दोगे, जूस दोगे, क्या दोगे? जो भी अवेलेबल चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स या टॉफी है, जो भी दे दो। ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट इसको तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा ही नहीं। नहीं, और चीज भी ले रहे हैं ना, साथ चीज और भी ले रहे हैं ना, उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और इंसुलिन ले रहे हैं, बस हाइपोग्लाइसीमिया। हाउ यू ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया? रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया का चांस हो सकता है तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट चीनी खाते। लेकिन इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या करती है? ये करती क्या है? ये आपके सैकराइडाइज जो एंजाइम है जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको ये सैकराइडाइज उसको ये ब्रेक उसको रोकती है, इनहिबिट करती है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो ग्लूकोज को ब्रेक करके जो चेन होती है उसको तोड़ के, तो आपने चीनी नहीं देनी, फल नहीं देना, फ्रूट जूस नहीं देना, आपने प्लेन ग्लूकोज देना, प्लेन बिकॉज इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब, इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इट्स यूज। दिस इज द प्रैक्टिस पॉइंट। समझ आ गई बात? ये ग्लूकोज लेके कहां जाएंगे आप? इजीली अवेलेबल तो नहीं होता है भाई, मैं वैसे बता रहा हूँ कि इफ यू आर ट्रीटिंग, इफ यू हैव गुजारे का हाँ ये यानी कि इन लोगों ऐसे लोगों के जो एक्आरबोस पे हों उनको हाइपोग्लाइसीमिया यू ट्रीट विद सिंपल शुगर, सिंपल जिनको हम अपने बायोकेमिस्ट्री में शहादत अली खान पढ़ाते थे, मरहूमा, तो वो मोनोसैक्राइड्स हम शुरू ये पढ़ाया जब मोनोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, डाइसैक्राइड्स के थे। तो ये मोनोसैक्राइड्स आप इसमें रिकमेंड के फ्रुक्टोज एंड यू कैन गिव दी जो बिस्किट्स हैं लिखा होता है ग्लूकोज सिरप। हाँ, ग्लूकोज सिरप, इतनी बेकरी हाँ ग्लूकोज सिरप यूज करें, लिखा हो वो ले। ठीक हो गया। ये एक पॉइंट था थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने वाला था। ये है DPP-4 इनहिबिटर्स, ठीक है, जो आजकल इन है। उसको कहते हैं थोड़ा सा ऐसे कर ले। अच्छा ये अच्छा आपको दिस इज ऑल ऑफ द रिकॉर्ड व्हिच आई एम जस्ट मेंशनिंग बिकॉज मैं अमेरिका गया, वहाँ पे उस वक्त नई ये आपकी ये DPP-4 इनहिबिटर्स आ रहे थे, तो AD की सारी मीटिंग में जो मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चर्स दे वर ऑन इस पे थे। मैं क्या कोई दवाई आ रही है सारी इंडस्ट्री के पास हो गई है। Now the things are quite industry driven as well, industry driven भी हैं, ठीक है ना। तो DPP-4 inhibitors they are very good medicine because they address one pathogenic window जो हमने बात की कि इंक्रेटिन हमारी वो कम होती है। तो क्या करते हैं, नॉर्मली हम खाना खाते हैं where GLP-1 and GIP they are released, ठीक है ना, आपके इंक्रेटिन हार्मोन्स आ जाते हैं
और आपके एक्टिव GLP-1 जीन बन जाते हैं। हो गया। क्या होता है कि बेसिकली जो ही खाना खाया उतने साथ ही ये GLP-1 क्या करते हैं, ये आपकी इंसुलिन को ये सिक्रीट करवाते हैं फ्रॉम बीटा सेल और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन को सप्रेस करवाते हैं। ये एक्शन है जो सल्फोनाइल यूरिया में नहीं है। सल्फोनाइल यूरिया में कंटिन्यूस ग्लूकोज आपका वो इंसुलिन सिक्रीशन होती जा रही है। ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन है। ग्लूकोज खाना खाओगे तो ग्लूकोज मिलेगा। You know, this is the difference that you have less hypoglycemia with the DPP-4 compared to the sulfonylurea. Moreover, they have a very short lifespan, 2 to 3 minutes होता है. And one enzyme, DPP-4 enzyme, it immediately block their effect and it inactivates. Okay? So if you are using a medicine to block this enzyme, you will have enhancement of these hormones, intestinal hormones. या दो ऑप्शन बताएं, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन नंबर 1 एंड सुप्रेशन ऑफ अल्फा सेल एंड ग्लूकागॉन सप्रेशन। तो दो इफेक्ट आपको ग्लूकागॉन सप्रेशन की और कोई दवाई नहीं है सो GIP और ये जो हम GLP-1 और ये DPP-4 इनहिबिटर्स की। ये व्हाट वी सी इज दिस vildagliptin एंड यू सी दिस ग्लूकोज, ये ब्लू लाइन ऑफ ग्लूकोज है, ये प्लेसिबो है येलो वाला, और इसमें इंसुलिन सिक्रीशन बनी और ये देखिए GLP-1 लेवल जो है वो आपका ऊपर चला गया और यहाँ पे ये देखो ग्लूकागॉन लेवल आपका नीचे चला गया। सो दिस इज द बेसिकली शॉर्ट समरी ऑफ व्हाट इज द इफेक्ट। नो सिग्निफिकेंट हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन। मोस्ट कॉमन अपर नेजोफ्रेंजाइटिस बड़ा कॉमन है। वैसे कई दफ़ा आपने देखा लोग कहते हैं गला ख़राब हो रहा है, साथ नज़ला ज़ुकाम होता जा रहा है इस दवाई के साथ। No head-to-head trial, no clear concern regarding cardiovascular safety, but I differ from this statement because इसको मैं करेक्ट करना चाहूँ, मुझे टाइम मिला नहीं। इसको टेस्ट किया गया सिटाग्लिप्टिन को प्लेसिबो के साथ इसकी कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी देखने के लिए। टिकॉस ट्रायल के नाम से हुआ, टिकॉस के नाम से था, ये कुछ 2015 के अंदर हुआ था। एंड इट हैज शो नॉन इन्फीरियरिटी, यानी इट इज़ क्वाइट सेफ टू यूज इन द कार्डियक पेशेंट बिकॉज अब FDA ने सब पे जितनी शुगर की दवाइयाँ सब पे एक पाबंदी लगा दी है, हर दवाई कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी के लिए टेस्ट की जाएगी। इस दवाई को हार्ट के पेशेंट पे ट्राई किया जाएगा कि हार्ट के पेशेंट में शुगर कंट्रोल करता है। तो इट हैज शोन न्यूट्रलिटी, बट द ओनली थिंग, ओनली DPP-4 inhibitor which has a bad name, which is saxagliptin, because it leads to more heart failure cases. So you are not going to give those patients who are having established heart failure because it leads to more hospitalization due to heart failure, and they can be used safely. You have the linagliptin, आजकल linagliptin का शोर मचा हुआ है। Linagliptin is quite safe. You can use in a chronic disease at any stage. End stage renal में भी आप दे सकते हैं linagliptin, no issue at all. अच्छा, कुछ लोग कहते थे पेंक्रेटाइटिस करता है, कोई इसमें नहीं, FDA ने सारा इसको डिसअप्रूव किया। सोडियम ग्लूकोज ट्रांस SGLT2, ये है टॉक ऑफ द टाउन। दिस इज द बेसिकली द टॉक ऑफ द टाउन विच वी आर नाउ हैविंग। सो बिकॉज आई कॉल इट इज अ गेम चेंजर, दे हैव रिड्यूस अवर बर्डन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज भाई बहुत सारी कौन यूज करता अपनी प्रैक्टिस में SGLT2? एक दो हाथ तकड़े करो यार, सब कर रहे हैं, दो हाथ करे कौन यूज कर ठीक है। तो so this is a very simple mechanism of action, and because you have glucose, you know, बड़ा ही अक्लमंद बंदा था जिसने इसको डिस्कवर किया। उसने देखा कि ग्लूकोज फिल्टर होता है नेफ्रॉन से और बाकी जो सारा का सारा रीअब्जॉर्ब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब होता है। अब उसने वो विंडो ढूंढी, वो रिसेप्टर्स ढूंढे, जहाँ वो खिड़कियाँ ढूंढी जहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा था। उसने क्यों ना ऐसी दवाई याद की इन खिड़कियों को बंद किया जाए, ठीक है, तो इसको ग्लाइकोसूरिया इंड्यूस की जाए। ठीक, तो ये है कि ग्लूकोज से एंटर एंड इट इज S1 सेगमेंट में जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का आया 90% का इस यहाँ से वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी जो 10% रिमेनिंग सेगमेंट। तो ये दिस इज SGLT2 पे है और ये देखिए कि जितना हो गया सारा ग्लूकोज जो आपका निकल गया ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। आप बहुत सारे बंदे आपके पास आते हैं, पेशेंट आते हैं और आपके मरीज बहुत ग्लूकोज या शुगर की रिपोर्ट लेके आए हैं, 4+ ग्लूकोज लिखा है, डॉक्टर साहब को शुगर बड़ी ज़्यादा होगी मेरी, और मैं क्या दवाई की वजह ना यू मस्ट टेल द पर्सन ये ग्लूकोज की वजह से जो आपके, तो व्हाट द बेनिफिट इज यू आर गेटिंग,
because you are losing 80 to 100 gram glucose per day. So 1 gram of glucose equal to 4 calories. So it means you are losing around 320 to 400 calories per day. हाँ? बड़ी यूरिया हो रहा है, ठीक है ना? तो इससे लोग बड़े आपके पास आएंगे, बड़े लोग आएंगे, मेरा वजन बड़ा बड़ा कमजोर हो गया. हमारे मुल्क ये नहीं कहते मेरा वजन कम हो गया, वो कहते मैं कमजोर हो गया. एक औरत आई कहती डॉक्टर साहब मेरा एड्डा मुंह से मेरी नौ नहीं डरती मेरे को. तो मेरा ये आपने क्या असर कर दिया. So but I just you must teach and brief the person that you will have the loss of weight with this medicine. But this is not the only thing which you are getting, because one beauty of this medicine is that the mechanism for insulin dependent. बहुत दवाई है जिस पे इंसुलिन का गुजर नहीं है दूर दूर से. इंसुलिन के कुछ नहीं कहती है, बीटा सेल को कुछ नहीं कह रही, बाकी कुछ नहीं कह रही. एंड बिकॉज इट रिड्यूसेस द वेट एंड ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर के वेट से भी कम होता है, और हाइपोवोलीमिया जो हो रहा था है वो उसकी वजह से, और आपका सोडियम भी लो हो रहा था, बिकॉज दिस इज सोडियम ग्लूकोज को उनको लिमिट कर रही होती है. कैन नॉट बी यूज, कैन बी यूज. देखिए मैं ये गलत है फिक्रा, मैंने इसको ठीक किया था वो, लेकिन पुरानी फाइल में नहीं आया. इट कैन बी यूज विद रिड्यूस GFR. क्या लेवल तक यूज कर सकते हैं? 30 तक. नाइस वाले 20 पे आ गए हैं. 2 साल, अगले साल ये 15 से नीचे आएगा इंशाल्लाह. यानी ये सेफ है, बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द किडनीज एज वेल. अच्छा, हाइपरकैलेमिया, रीनल इनसफिशिएंसी में हम बड़ा केयरफुल होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा होता है कि LDL एलिवेशन होती है, माइट हैव LDL एलिवेशन. वन प्रैक्टिस पॉइंट इज दैट व्हेन यू स्टार्ट SGLT2, इनिशियली यू हैव द ड्रॉप ऑफ रीनल फंक्शन. आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, मरीज परेशान हो जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है. विद इन कपल ऑफ मंथ्स इट विल बी टोटली टेकन ऑफ. सो बिकॉज कि आपका हाइपोवोलीमिया होता है. हाइपोवोलीमिया का रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपके जो किडनी फंक्शन है वो थोड़े से क्रिएटिनिन हायर साइड पे. इंसिडेंस ऑफ जेनिटल इन्फेक्शन कितना है? पता क्या, कुछ लोग इसका, हमने एक स्टडी की है, इतना हमारे मुल्क के अंदर एक हमने स्टडी की थी सेफ पाक के स्टडीज के नाम से. हमने देखा था कि एसिम्प्टोमेटिक जो UTI है ना वो क्वाइट कॉमन हो गया है. तो इट्स बेटर टू चेक द यूरिन कंप्लीट बिफोर यू स्टार्ट दिस मेडिसिन, ताकि आपको पता लगे उसकी वजह से हो रही है, पहले उसको है. ठीक है, एक तो ये बात होगी. दूसरा, द चांसेस ऑफ जेनिटल इन्फेक्शन क्वाइट अराउंड बिलो 10% है वैसे मेरी अपनी प्रैक्टिस में. कुछ लोगों को ज़्यादा, और बहुत सारे GPs डरते हैं इसको शुरू करने में कि शायद UT कर देगी. शुरू में हमारा भी यही कंसर्न था, लेकिन नहीं है. दिस इज द यू विल हैव एक और हमारे आपको को शुरू कब करना है? हैं, बाकी हमारी मेटफॉर्मिन भी है, सल्फोनाइलुरिया उधर ही आ रहे हैं. मैं स्टोरी को उधर लेके जा. इसमें एक और चीज़ है जो कि हम समझते हैं, क्योंकि वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में वो टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, वॉश नहीं करते. हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज है यहाँ पे चांसेस कम है UTI के, क्योंकि हम वॉश. यही जो स्टडी हुई थी सेफ पाक, ये मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर की गई थी. इसके अंदर जो, इसके अंदर बहुत सारे हमारे, मेरा भी सेंटर था, बाकी सेंटर भी थे, शावर थे, या चामर साहब थे, अब्बास रजा में, और बाकी लोग भी थे. तो so but the problem is the euglycemic diabetic ketoacidosis. I've seen one case, एक केस देखा है कि लो 200-250 शुगर पे भी उसको कीटोसिडोसिस हो गया. तो दिस इज द प्रॉब्लम उसका. लेकिन कम्प्लेक्स मैग्ना एंड कैनाग्राफेजन वाज रिलेटेड विद द चांस ऑफ एम्पुटेशन. फ्रैक्चर इसमें होता है, बोन फ्रैक्चर का चांस था. CV बेनिफिट्स ये ज़बरदस्त है. SGLT नॉट एसोसिएटेड विद ब्लैडर कैंसर, आर नॉट एसोसिएटेड विद ब्लैडर कैंसर, बिकॉज पहले लोगों का ख्याल था ये ब्लैडर कैंसर करती है, लेकिन ये मैंने कल इसको दोबारा काउंटर चेक किया और उसका रेफरेंस ढूंढा, ये 2022 में डायबिटीज केयर में जो पब्लिश हुआ है. मैंने कल स्पेशली, पहले ये था कुछ लोगों का कहते, फिर मुझे रेफरेंस ढूंढना पड़ा इसका. उसकी यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्लिनिकल पिक्चर ये होती है कि जब आपका ग्लूकोज लूज होता है ना, तो आपकी जो इंसुलिन सेक्रेशन सप्रेस हो जाती है. पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या है? कंप्लेंट्स होती है कि वो क्या कहते हैं, वो यूरिन पास करता है, जो डीके की आती है उसके सिम्टम आते हैं. पॉलीयूरिया, पॉलीटिप्सिया, आप यूरिन चेक करते हैं तो उसमें कीटोन्स आए होते हैं. शॉर्ट टर्म सप्रेस एसिडोसिस है तो शॉर्ट टर्म सप्रेस जरूर होगी. हाँ जी.
सो दिस आर द प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स। प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जो शुगर कंट्रोल करने के अलावा क्या क्या फायदे मिल रहे हैं आपको, बिकॉज इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, बिकॉज दैट कीटोन बॉडीज। अच्छा ये बताएं कि कीटोन्स का फायदा क्या है इंसान को? हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी किसके लिए? किसके लिए? जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती तो ये वहाँ नहीं नहीं, एक चीज मुझे बताएं, दिमाग की ग़िज़ा क्या है? हार्ट की ग़िज़ा क्या है? नहीं नहीं नहीं, फैटी एसिड्स। यू नो, नहीं पता था ना, फैटी एसिड है। बिकॉज हाउ इट इंप्रूव्स द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बिकॉज यू हैव मोर कीटोन प्रोडक्शन। ये माइल्ड सा कीटोनीमिया करती हैं ये दवाई। दैट इज व्हाई यू हैव मोर इफेक्ट ऑन हार्ट कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कार्डियक फेलियर में भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी इतने सारे ट्राई कार्डियक फेलियर में यूज हो रही है, अब तो कार्डियक इवन नॉन डायबिटिक के अंदर यूज हो रही है दवाई। ठीक है, ये अभी हम उससे बात करेंगे, उसमें जब बात करेंगे। बिकॉज दिस वाज द क्वेश्चन व्हाइल आई वाज डूइंग माय कोर्स इन कार्डिफ। उन्होंने ये पूछा कि क्या वजह है कि ये इसका सेम, इसका जो SGLT2 का कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट फौरन आते हैं, GLP-1 का 6 महीने साल बाद आता है, इसकी क्या वजह? मुझे नहीं आया था, फिर मैंने उससे फिर अपने उससे ट्यूटर से पूछा, उसने मुझे फिर ये बताया कि ये वजह। तो सप्रेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी एंड एरिथ्रोपोइटिन लेवल आपका वो बेहतर करती है। और ये जो होता है ये जो होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर डायलेटर इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से आपके कार्डियोवैस्कुलर एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? इनहिबिशन ऑफ एनर्जी कौन सी? ये है सोडियम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। अच्छा ये जो चीज़ था आपको शायद समझ थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको सिंपल कर देता हूँ। ये ट्रायल हुए हैं मुख्तलिफ, एम्पायर ट्रायल हुआ है, कैनवस ट्रायल हुआ है, डिक्लेयर ट्रायल हुआ है। ये हुआ एम्पाग्लिफिजिन के ऊपर, ये हुआ कैनाग्लिफिजिन के ऊपर, और ये डेपाग्लिफिजिन के ऊपर। ये सारे ये 3 पॉइंट मेस इसको कहते हैं, मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है नॉन फेटल MI, नॉन फेटल स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर डेथ। ठीक, तो ये तीन चीज़ों को ये सारे पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन ये डिक्लेयर में कार्डियोवैस्कुलर डेथ को इतना फायदा नहीं हुआ जितना हार्ट फेलियर को। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कम हुआ, स्ट्रोक का इंसिडेंस कम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ हार्ट फेलियर का इंसिडेंस कम हुआ, कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी डिक्रीज होती है, ऑल काज मोर्टेलिटी। तो ये इसके प्लियोट्रॉप इफेक्ट है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट गेम चेंजर, बिकॉज इट हैज़ वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन योर हार्ट। अभी हम बात करेंगे किन लोगों को, जैसे डॉक्टर साहब पूछते हैं किन लोगों को देनी है। तो और किडनी पे क्या इफेक्ट है, ये देखा कि प्रोग्रेशन ऑफ एल्बुमिन यूरिया ये 30% रिडक्शन कर देती है, डबलिंग ऑफ सीरम क्रेटिनिन 44% रिडक्शन है, रेट ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट 55% है। तो ये इसके रीनल बेनिफिट्स हैं, यानी किडनी को भी फायदा दे रही है, हार्ट को भी फायदा दे रही है। तो आपने देखा कि जिन लोगों को किडनी डिजीज है उसका देखे एल्बुमिन यूरिया को फायदा किया, डबलिंग ऑफ क्रेटिन, जितना टाइम लगा था क्रेटिन डबल होने में वो कम किया, और रीनल रिप्लेसमेंट के जिनको किडनी ट्रांसप्लांट का जा रहे थे उनकी 55% रिडक्शन था। इससे तो लगता है कि एम्पा बाकियों से बेहतर है। नहीं, अभी 2 ट्रायल हुए हैं, एक एम्परर ट्रायल हुआ है, एक है एम्परर जिसमें प्रिजर्व्स इजेक्शन फ्रैक्शन। उसमें हार्ट फेलियर को 2 तरह क्लासीफाई करते हैं, विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन एंड प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। 45 से अगर आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो इसको रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, 45 से ज़्यादा प्रिजर्व कहते हैं। प्रिजर्व को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है, रिड्यूस को बहुत बेहतर है। ये दोनों में यूज़ होती है, एम्पा भी और ये डेपा भी। कहना पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा आजकल एक और रूट्रोग्लिफलोजिन आई हुई है, ER2। प्रिजर्व को कैसे करें? वही से वो जो मेरा गेट्स वालों की है, रूट्रोग्लिफलोजिन में, हाँ वो न्यूट्रल है, उसके कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स नहीं है, वो कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स नहीं है, ये इसके हैं कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स। ये फ़र्क समझ लीजिएगा, जब ये आपके पास हैं तो आप ये भी आगे से कीजिएगा। मैंने उसको खास तौर पर चेक किया, उसके कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स नहीं है। तो सेंट्रली एक्टिंग डोपामिन एगोनिस्ट, जस्ट विल गो थ्रू ब्रोमोक्रिप्टिन, बड़ी पार्लोडेल यहाँ अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर।
पार्लोडिल भी डायबिटीज़ में ट्रीट कैसे, बिकॉज सेंट्रली एक्टिव, वो कहते हैं डोपामिन ज़्यादा निकलती है इस वजह से हाइपरग्लाइसेमिया, इट रिड्यूसेस द पोस्ट पेनियल ग्लूकोज रिडक्शन, एंड व्हेन यू हैव सम अदर चॉइस यू कैन यूज दिस मेडिसिन, बट द साइड इफेक्ट्स आर क्वाइट कॉमन, नोजिया, डिजीनेस, फटीग। और आप देते हैं जी ये देते हैं आप पार्लोडेल? बहुत रेयरली। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट दे आर नॉट अवेलेबल, कॉल्सेवैलेम के नाम से है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लो करती है, मैकेनिज्म एक्शन इज अनसर्टन बट इट रिड्यूसेस बट मे एक्ट इन द जीआई ट्रैक्ट टू रिड्यूस द ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन। ये वो दवाइयाँ जो लीस्ट डिस्कस हैं बट दे कैन बी यूज सेफली इन डायबिटिक पेशेंट्स। जैसे वो एक और बोल रहा है वैसे। ये बड़ा है टॉक ऑफ द टाउन। ये कहाँ पे है, आपने ये घर देखेंगे, देखे होंगे ये घर? दुबई में हो गए। वो यूके में ही सारे उधर ये है साउथ अफ्रीका में, अच्छा साउथ केप टाउन में ना, ये सामने समुंदर है, ये बड़े खूबसूरत घर बने हुए। अच्छा, ये मैकेनिज्म एक्शन, दिस इज ए एक्सप्लेनेशन। आप खाना खाया, यहाँ पे गए, गट हार्मोन इंक्रेटिन्स गने, एक्टिव GLP-1 एगोनिस्ट गया, तो इंक्रेटिन इफेक्ट हुआ, उसके बीटा सेल और अल्फा सेल पे ग्लूकोज डिपेंडेंट है, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को डिक्रीज किया, इंक्रीज एनहांस द इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय द मसल, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल decrease hepatic glucose production. The same which we have the DPP-4, but what is the difference? Difference क्या है? ये because in DPP-4 you are inhibiting the enzyme जो degrade कर रहा था, लेकिन GLP-1 आप उन हार्मोन्स को सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोज में दे रहे हैं, इतनी दे रहे हैं कि DPP-4 के साथ गैस्ट्रिक एम्प्टी पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसके साथ गैस्ट्रिक एम्प्टी पे इफेक्ट है, इसका उसका सटाइटी पे कोई फर्क नहीं, आपको आपकी भूख जल्दी मर जाती है उसके साथ, इसके GLP-1 के साथ, बट इट हैज द DPP-4 दे हैव नो इफेक्ट ऑन सटाइटी। ये इसके इफेक्ट्स है, प्लियोट्रॉप इफेक्ट्स, ये देखा कितने इफेक्ट्स हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टी डिक्रीज करती है, ब्रेन पे डिक्रीज एपिटाइट एंड यू हैव मोर सटाइटी, एनर्जी एक्सपेंडिचर, हार्ट पे डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, increases the heart rate, increase the myocardial contractility, cardio protection and kidney natriuresis and muscle पे increase glycogen synthesis, adipose tissue पे lipolysis है, liver पे decrease hepatic glucose output है, बीटा इंसुलिन सिक्रीशन करती है, ग्लूकोन सप्रेशन करती है, बीटा सेल सर्वाइवल रेट ज़्यादा करती है, बीटा सेल प्रोलिफरेशन करती है प्रोसेस, ये इसके इफेक्ट्स हैं। तो ये इट इज़ द वंडर ड्रग। लेकिन इस डिसएडवांटेज है कि इंजेक्टेबल है एंड प्राइस है, प्राइस ठीक है ना। सुना था अभी उससे आ रहे हैं जिससे ये देखें। अच्छा, इसमें बहुत सारे ट्रायल हुए, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, व्हाट वी आर हैविंग दैट पाकिस्तान में ड्यूलाग्लूटाइड है, ट्रूलिसिटी के नाम से है, लीराग्लूटाइड विक्टोजा के नाम से अवेलेबल है, एक्जेनाटाइड पहले अवेलेबल थी अब नहीं है, तो ये है। थोड़ा सा मैं इसको, ये चीज़ आप थोड़ा सा गौर कर लें कि ये DPP-4 के ऊपर जो ट्रायल हुए हैं, GLP-1 के जो ट्रायल हुए हैं, ये सारे फेवर करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी की तरफ, स्वाय ये न्यूट्रलिटी एलेक्सा, ये है ये है एक एलेक्सा ट्रायल था, तो उस पर लिक्सिसेनाटाइड पे वो न्यूट्रलिटी है, इस पे बाकी सारे फेवर कर रहे हैं। ये आपने देखा ग्राफ इधर जा रहा है, तो ये सारे कार्डियोवैस्कुलर फ़ायदेमंद हैं। ये जो ओरल सेमाग्लूटाइड जैसे बात करें कि GLP-1 कहते हैं इंजेक्टेबल है, इंजेक्टेबल नहीं है, एक ओरल भी है रिबल्सिस के नाम से। लेकिन ये अभी पाकिस्तान में अगले साल 2023 में आएंगे, पायनियर ट्रायल में ये देख लें कि शुगर को कंट्रोल बेहतर तरीके से किया, वेट लॉस किया है, और साथ ये आपके साथ कार्डियोवैस्कुलर मोटिलिटी को भी डिक्रीज किया। सेमाग्लूटाइड तो इसमें वेट रिडक्शन के लिए, सेमाग्लूटाइड जो हम यूज़ करते हैं ओज़ेम्पिक के नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल है। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स ऑन दैट अराउंड में। ये कब आ रही है ओरल? अगले साल शुरू, लेकिन महंगी होगी गोली है। और ये एक मैं बता दूं, ये गोली जो है ना, ये पेश खैमा है ओरल इंसुलिन की तरफ, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है ना, क्योंकि उसने गैस्ट्रिक जो आपके एसिड को प्रोटेक्शन के देने के लिए, बिकॉज दिस इज आल्सो प्रोटीन, उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो एसिड प्रोटेक्शन से बचने के लिए। ब्लड में जाके रिलीज होगी तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड। सर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट किसकी? ओज़ेम्पिक की कॉस्ट है 17,000 रुपये महीने, ओज़ेम्पिक है
I have so many patients on Ozempic. Their cost is 17,000 rupees per month. It's a once weekly injection, once weekly. Last time I was seeing a patient who was very overweight, and he reduced in two months time 19 kilogram with the semaglutide, 19 kilogram. But I gave a wonder combination. What was the combination? I gave him the semaglutide plus orlistat. How many years? 17 kilogram in how many? 2 months. आजकल वो आगे टीम पास प्लस भी वो बीन आगे के अच्छा, रेफरेंस सीट the latest drug which has been approved, which is this Manjaro के नाम से, बड़ा देसी सा नाम है Manjaro. Tirzepatide, ये लिली की ड्रग है. ये GLP-1 और GLP दोनों को इनहिबिट करती है. This is the new medicine. It is going to be available next year very soon, but it has been used for weight reduction and glycemic control. बड़ा अच्छा weight reduction इसके साथ. Sure. देखिए, जैसे आपका सेमाग्लूटाइड है, जो सिक्सेंडा है, जो जिसे लीराग्लूटाइड 3 मिलीग्राम, वो नॉन डायबिटिक के लिए बनी हुई है, ओबेसिटी के लिए. और मेरे जो पेशेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वेट लॉस के, वो इज नॉन डायबिटिक. आई गेव हिम दिस सेमाग्लूटाइड. और ये भी आप नॉन डायबिटिक को दे सकते हैं. और इवन जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, डेपाग्लिफोजेन है या अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है, आप उसको नॉन डायबिटिक को भी दे सकते हैं. GI साइड इफेक्ट, GI सबसे पहले नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टियाँ, बुरा हाल. एक पेशेंट तो वो ट्रूलिसिटी ला के टेबल पे फेंकेंगे. लेकिन आप ट्रूलिसिटी का इंजेक्शन देखें ना, इतना खूबसूरत इंजेक्शन है कि बंदे को पता नहीं चलता ये इंजेक्शन लगा है उसको कि नहीं लगा. ब्यूटीफुल इंजेक्शन. once weekly. Once weekly. तो सेफ्टी कंसर्न है, ये साइड इफेक्ट आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल बिकॉज दिस नॉट अंडर यूज. कुछ लोग कहते हैं ये थायराइड कैंसर करता है, बट इफ़ यू हैव द फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड कैंसर, टी सेल कार्सिनोमा, जो इसको मेडली सेल कार्सिनोमा कहते हैं, उसके केसेस ह्यूमंस में तो देखे नहीं गए, लेकिन जो एनिमल्स के अंदर वो देखा गया. सो नाउ वी गोइंग टू द लास्ट पार्ट. अच्छा, ये एमिलिन है, ये स्क्रीट होती है, सिंथेटिक एमिलिन है बाय द बीटा सेल्स, एंड it's been used for postprandial hyperglycemia, slows the gastric emptying, just like GLP-1. ये अवेलेबल नहीं है, माइलिन के नाम से बाहर अवेलेबल है. इंसुलिन्स, different types of insulins are there: regular, NPH, rapid analog, basal analog, pre-mixed, glargine. आप कौन सी यूज करते हैं? प्रीमिक्स यूज करते हैं सारे प्रीमिक्स. वो जरा इजी रहता है पेशेंट के लिए. इजी रहता है. बजाय 4 इंजेक्शन के आप 2 इंजेक्शन दें. डू यू थिंक यू आर गेटिंग द प्रॉपर ग्लाइसेमिक विद प्रीमिक्स? बहुत कम चांस है उसमें साथ आपको जाहिर है मेटफॉर्मिन बाकी चीजें भी देना पड़ता है. देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपसे जो मैं ना, ये जो फोरम है इसमें दिल की बात भी मैं कर सकता हूँ. तो दिल की बात ये है कि मैं प्रीमिक्स नहीं देता, मैं फ्री मिक्सिंग देता हूँ, रेगुलर NPH. You just start doing it. It's a bit difficult for the patient, but results are tremendous. मेरे पास कौन से पेशेंट आते हैं? प्रीमिक्स्ड आते हैं सारे. मैं सबको इस पर शिफ्ट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हो जाते हैं. But if you get the proper combination, I'll let you know how you combine it. कि कैसे देते हैं. फ्री मिक्सिंग, रेगुलर NPH को मिक्स करके लें. Wonderful results. Don't go after this premix because it's had an unpredictable action profile. You might have hypoglycemia one day, you have hyperglycemia next day. Okay? So these are the indication of insulin. You know, किन लोगों में इंसुलिन देने significant hyperglycemia at presentation. पहले दिन से शुगर हो गई है, A1C उसका 14 में पहुंचा हुआ है. Obviously you gave the insulin just for the rescue purpose. You give in the surgery, in pregnancy. Don't think about the oral agent except the metformin. And acute injury, stress, infection, weight loss, use of diabetogenic medicine, and if there is secondary failure, intolerance to oral, need for flexibility, renal or hepatic disease के अंदर obviously your choice should be insulin. ये different action profile है, थोड़े से इसमें डिटेल में जाता. ये जो आपकी काम की स्लाइड ये है, थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी. वैसे आप बेजल इंसुलिन कौन शुरू देता है पेशेंट को? बेजल ग्लार्जिन मैंने भी दिए, लेकिन बाद का वापस आता है. उसमें इनिशियली शुरू करनी है तो उसमें देखो ना, जस्ट टू रिमूव द फियर ऑफ पर्सन
अगर आपने मरीज का खौफ दूर करना है ना, उसको बेजल से शुरू करो। सिंगल शॉट है, एक्सेप्टेंस 100%, कबूल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ही टीका लगाना, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। यू स्टार्ट डोज 10 यूनिट्स पर डे और 1.1 to 0.1 यूनिट पर केजी पर डे के लिए डोज है, ये इसकी डोज है, स्टार्टिंग डोज। और हर दूसरे मैं इसको कहता है 1 2 3, लेकिन 3 2 1 इसको पढ़ें आप, 1 2 3, आप 3 2 1 पढ़ें कि हर तीसरे दिन 2 यूनिट बढ़ाएं जब तक आपका फास्टिंग 110 पे न चला जाए या 100 है। समझ आ गई बात? 1 2 3 इसको उल्टा पढ़ेंगे, हर थर्ड डे 2 यूनिट जब तक 100 पे आपका फास्टिंग है। यू टाइट्रेट, यू फिक्स द फास्टिंग फर्स्ट, द टेक्निक इज फिक्स फास्टिंग फर्स्ट, ट्रिपल F, फिक्स फास्टिंग फर्स्ट। You continue the oral, you can continue the self-analysis, but you must avoid hypoglycemia। आप इसके साथ DPP-4 भी जा सकते हैं, आप इसके साथ SGLT2 भी जा सकते हैं, मेटफॉर्मिन देनी है। Even if you are not getting the response, वो क्या कह रहा है कि आप GLP-1 ऐड कर दें लेंटस के साथ, या अगर ग्लार्जिन आ रहा है GLP-1 भी दे दें, क्योंकि GLP-1 पोस्ट पेंडल कवरेज देगा और वो बेजल कवरेज करेगा। एक तो ये आपकी चॉइस आ गई। इफ या आप इंसुलिन के अंदर बेजल के साथ एक बड़े मील के साथ एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, जैसे नोवो रैपिड है या हिमोलॉग है, एक टीका उसका लगा दे, इसको कहते हैं बेजल प्लस। क्या कहते हैं? बेजल प्लस। बेजल प्लस है कि एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्लस बेजल इंसुलिन, ये बेजल प्लस है, ठीक। लेकिन वो लार्जेस्ट, हाँ डिफरेंट है, लार्जेस्ट मील के साथ। माशाल्लाह साढ़े सारे मील लार्जेस्ट होंगे ने, पहचानते हो, यू नीड अ वेरी इंटेंसिफाइड काइंड ऑफ, बिकॉज इफ द थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल, आप 3 दफा शॉर्ट एक्टिंग और एक बेजल इंसुलिन, तो इसको कहते हैं बेजल बोलस थेरेपी। क्या कहते हैं? बेजल बोलस। हर खाने से पहले आप वो देते हैं। तो इसको डोज का तरीका क्या है कि आप देखो कि आप बंदा 40 यूनिट ले रहा है, मिसाल के तौर पर एक बंदे की डोज 40 यूनिट पर डे है, तो उसको कैसे बोलस में कन्वर्ट करेंगे? 1/3 सुबह दीजिए उसको, वैसे नहीं, उसमें आप 4 हिस्से कर लें, ठीक है ना। जो आपका 50% है ना, 50% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बेजल। 50% 20 यूनिट आपने बेजल के देंगे, बाकी जो बोलस से आपने दी है 20 यूनिट बाकी बचे ना, तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 7-7 यूनिट या 8-8 यूनिट बनते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे, ठीक हो गया। तो ये एक इंसुलिन को है। अच्छा, अगर आप इस पे प्री मिक्स पे जाना चाह रहे हैं, जो हम सबका बड़ा शौक है, चेंज टू प्री मिक्स इंसुलिन ट्वाइस डेली बिफोर ब्रेकफास्ट, डिवाइड द करंट बेजल डोज 2/3 इन द मॉर्निंग और 1/3 आप इवनिंग पे जाएंगे, ठीक है। और हर दूसरे तीसरे दिन 2-2 यूनिट बढ़ाएंगे, 15% डोज बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ा तो अल्टीमेटली आपने उसी पे आना है। अच्छा, इसको पुअर मैन बेजल बोलस भी बना सकते हैं, वो कैसे बन सकती है? पुअर मैन मरीज कहते मैं नहीं और लेंटस अफोर्ड कर सकता, मैं तो एक्ट्रैपिड भी अफोर्ड नहीं कर, नोवो रैपिड अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ? पुअर मैन बेजल बोलस क्या होता है? NPH उसको रात को दो, हर खाने से पहले एक्ट्रैपिड पेन में है, यानी वो बंदा ने ज़िंदगी में 2 पेन खरीदने हैं और उसका वो गुजारा चल पड़ना है। हर खाने से पहले एक्ट्रैपिड और रात को बेजल के तौर पे NPH आते हैं। तो पुअर मैन बेजल, every type 1 should be on basal bolus therapy, every। सर कैलकुलेशन किस तरह करनी जो आपने NPH कहा है इवनिंग टाइम पे, और वही वाली अच्छा उसी तरह करके 50% वो दे देनी है, और बाकी और मैंने देखा कि हमने टाइप 1 को प्री मिक्स दी होती है, विच इज FDA अप्रूव नहीं करती इसको, प्री मिक्स नहीं देनी है टाइप 1 को, आपने बेजल बोलस थेरेपी देनी है टाइप 1 डायबिटिक, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली दिस नीड ए लॉट ऑफ। सर यहाँ पे एक सवाल पूछना था कि जो अगर आपने प्रीमिक्स शुरू की है और आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो हाइपो के लिए क्या करेंगे? डिटरमिन एंड एड्रेस द कॉज, क्या वजह है? इफ नो क्लियर रीजन फॉर हाइपो, डिक्रीज द कॉरस्पॉन्डिंग डोज बाय 2 to 4 यूनिट और 10 to 20% डोज कम कर। पिछली डोज कम करनी, पिछली डोज मसलन देखो ना, अगर मेरी शाम को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है ना, तो मेरा जो दोपहर को टीका लगाया था वो जिम्मेदार है, उसको कम करूंगा। तो बेसिकली आप मेरे साथ प्लीज एक इंसुलिन का सेशन रखिएगा जिसमें हम इंसुलिन के बारे में क्लैरिटी सारी करेंगे। बिल्कुल रख रहे हैं, इंशाल्लाह। उसमें हम इनहेल्ड इंसुलिन जैसे अवेलेबल है, अफ्रेजा के नाम से अवेलेबल है, अमेरिका में अवेलेबल है। प्रेंडियल इंसुलिन है, अफ्रेजा के नाम से है, ठीक है। तो इनहेल्ड इंसुलिन है, ठीक है। इसके साथ काफ थ्रोट इरिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत। अच्छा, वी आर कमिंग टू दी
ये हमारी पूरा हमारा है कि यहाँ से हमने शुरू किए थे, तो फिर ये आ गया, अब ये आर्टिफिशियल पेंक्रियास भी आ गया हुआ है, जो आपको आपकी ग्लूकोज भी चेक करता है, साथ आपको इंसुलिन भी उतनी दे देता है, आपका आर्टिफिशियल पेंक्रियास। अब इस तरफ हम ये दुनिया में अवेलेबल है, ऑमनीमेड के नाम ये अवेलेबल है, महंगा काफ़ी है, लेकिन नहीं ये आपका स्कैनर यहाँ इस तरह से हाँ यहाँ पे होता है, साथ ही वो आपको इंजेक्ट करता है। अब मैंने अभी EST पे देखा, इतना सा आपका इंसुलिन पंप आ गया, इतना सा इंसुलिन पंप। गाइडलाइन क्या कहती है? दिस इज द लास्ट पार्ट कि करना क्या है। आपके पास मरीज आ गया, करना क्या है? जी डॉक्टर साहब का बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि करना कि किमें करनी, दवाइयाँ किमें देनी है, SGLT हाँ कब देनी, किसको देनी है। गाइडलाइन में कहती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनी हुई है, आपको समझ नहीं आएगी ये क्या बना। मैंने इसको छोटा किया, ज़रा सादा किया है। दिस इज़ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टॉक। जब आपका पेशेंट आप पेशेंट को ये है, ऊपर देखो सेकेंड लाइन थेरेपी, लाइफस्टाइल मेटफॉर्मिन, ये कर लिया, रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब आपने अपने मरीजों को क्लासीफाई करना है, क्या उस मरीज को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ये रिस्क है, या उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या हार्ट फेलियर है। ये आपके पास आएंगे ना कॉम्प्लिकेशन, तो आपने कैसे करना है। इसमें मेटफॉर्मिन के बाद जो ऑप्शन है सल्फोनाइल यूरिया नहीं है, DPP-4 इनहिबिटर्स भी नहीं है, यू गो फॉर GLP-1 और SGLT हार्ट वाले पेशेंट के लिए, कि जब आपने सेकेंड लाइन थेरेपी सल्फोनाइल यूरिया गैटर नहीं पानी होना, ठीक है, यू आर नॉट गिविंग हिम। अगर आपके एवंस नहीं होता देन यू कंसीडर दिस GLP-1 अगर ले रहे हैं तो ये दें, DPP-4 दे सकते हैं, बेसल इंसुलिन दे सकते हैं, TCD दे सकते हैं, या TCD के बाद में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये तो आपकी चॉइस है। अगर पुअर पेशेंट तो SGLT2 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਐਂਪਾਗਲਿਫੋਸਿਨ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ मेटफॉर्मिन यूरिया ऐड कर सकते हैं। सल्फोनाइल यूरिया, जो सल्फोनाइल यूरिया कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी में वो ग्लिपिज है, डायमोक्रोनामार है, जिसकी कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी एस्टैब्लिश है। इफ द पर्सन इज क्रॉनिक किडनी डिजीज, अगेन आपने क्या SGLT2 पे जाना। इफ GFR इज लेस देन 30 तो आपके पास क्या चॉइस है? हाँ 20 दे सकते हैं ना। अगर इससे भी अगर आपका इनटॉलरेंट है, अगर वो नहीं टॉलरेट कर रहा है, जी इन्फेक्शन हो गई है या और नीचे चला गया है, फिर बाकी तो आ जाती है ना, फिर DPP-4 बेसल से वट एवर। लेकिन अगर एक सवाल है मेरा कि अगर आप पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो SGLT2 उसको नहीं है, एक दवाई है वो आप पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, फिनेरिनॉन के नाम से है, फिर इंडिया के नाम से दुनिया में अवेलेबल है, तो वो दैट इज़ थेरेपी, बिकॉज इसके कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट भी हैं और उसके भी हैं। तो ये आपने हार्ट फेलियर देखे, आपकी क्लियर हो गया चीज़ है कि आपने जब सेकंड लाइन थेरेपी आपने जब हार्ट डिजीज़ है तो ये देनी है, किडनी डिजीज़ है तो ये, और हार्ट फेलियर तो ये देनी है। इसके अलावा फिर बाद में बाकी चीज़ें सोचनी है। ये क्लियर होगी सबको ये बातें? तो अगला बात तो ये है, अब ये हायरार्की उसने कहा कि अगर आप देना चाह रहे हो हार्ट डिजीज तो नंबर 1 पे हायरार्की क्या है आपकी? लीराग्लूटाइड पहली चॉइस है, सेमाग्लूटाइड सेकंड है, एक्सेनाटाइड ER सेकंड है। अगर आप देना चाह रहे हैं SGLT2, एम्पाग्लिफोसिन फर्स्ट चॉइस है, कैनाग्लिफोसिन सेकंड चॉइस है। ठीक क्लियर होगी? इसमें डेपा नहीं लिखा हुआ अभी। डेपा हार्ट फेलियर के अंदर यूज किए थे, डेपा होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन ये गाइडलाइन में भी लीराग्लूटाइड और एक्सेनाटाइड ये इनकी एनालॉगीज हैं और ये सेक्रीट करते हैं। GLP-1 एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट उसका इफेक्ट को एनहांस करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कहते हैं मैंने तो हाइपोग्लाइसीमिया से बचना है, अगर आपकी चॉइस ये है कि इस पेशेंट को बार बार हाइपो होता है, तो यू हैव 4 चॉइसेस, आइदर यू गो विद DPP-4 और GLP-1, SGLT2, TCD, इन तीनों चारों दवाइयों में से कोई दवाई हाइपो नहीं करती। क्लियर? फिर आइए आप दूसरे कॉम्बिनेशन पे आप जा सकते हैं अगर साथ जाना चाह रहे हैं। ठीक, अब अगर आपकी चॉइस ये हायरार्की ये है, अगर आपका चाहते हैं कि आपका वेट कम हो, मिनिमाइज द वेट गेन, तो आप GLP-1, SGLT2 मैन और आपकी सेमाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड, एक्सेनाटाइड, लेक्सिसैनाटाइड, ये आप वेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और
अगर आपके लिए कॉस्ट इशू है तो सल्फोनाइल यूरिया उन्होंने पहले रख दिया है, TZDs भी रख दिए हैं, फिर नहीं है तो A1C नहीं टारगेट, अगर सल्फोनाइल हो तो TZD ले लें। लेकिन ये पुअर माइंड चॉइस, अगर आपको बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा तो आप दोनों वेट इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसको आप नलिफाई कर सकते हैं विद SGLT2 एंड मेटफॉर्मिन तो आप ले रहे हैं। तो की पॉइंट जो आज हमने सीखे हैं, ग्लूकोज गोल थेरेपी मस्ट बी इंडिविजुअलाइज्ड, डाइट एक्सरसाइज एजुकेशन they have the foundation, unless contraindicated metformin first line drug, ठीक है। many patients will require insulin therapy and please select the best option। ये मैंने क्वेश्चन जो सामने रखे थे उसका जवाब आपको मिल जाए। metformin should begin if the A1C remains elevated after 3 to 6 month time after diet। ये तो पहले दिन से दे दीजिए, गलत है। अच्छा, A1C of 7 is consistent with the average sugar of 120 140 plus, शाबाश। SGLT2 may elevate the blood pressure, है डिक्रीज करती है, रॉन्ग है। Amylin hormone is secreted by the beta cell of the pancreas, beta cell. The efficacy of A1 insulin is analogous superior to the human insulin, नहीं सेम एफिकेसी है, बट हाइपोग्लाइसीमिया जो सेफ्टी है ना एनालॉग्स की बहुत ज़्यादा है, एफिकेसी वही है। यानी आप NPH दोगे, आप उसके जो हेड ट्रायल में NPH और ये इसका लेंटस का तो सेम रिडक्शन ऑफ A1 से, लेकिन उसमें हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा है। सर कौन सी मेडिसिन अभी में से है जो इज गोइंग टू रिप्लेस एज फर्स्ट लाइन ड्रग फ्रॉम मेटफॉर्मिन? कोई नहीं, मेरा आई डोंट सी नियर फ्यूचर, मुझे तो नहीं अभी लगता। तक नहीं आई। अच्छा, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। थैंक यू।